Hello everyone, welcome to Answer Kari. Today we are taking up question number 7 and 8 of GS Paper 3 2022. Starting with the first question, discuss the photochemical smoke, emphasis on its formation, effects and mitigation, explained in 1999 Gothenburg Protocol. तो इसमें तीन पार्ट था, चौथा चार पार्ट था इसमें बेसिकली फॉर्मेशन, इफेक्ट्स एंड मिटिगेशन और गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल. So I've just said that photochemical smog is caused by a chemical reaction between sunlight and VOC, NOx, chlorine, etc. It is a gray color carbon soot which gets subsumed in the air as aerosol. Formation effect: presence of NOx and VOC in atmosphere reacts with sunlight to form ground level ozone. This ozone is harmful in nature. It is hazardous to human health, causes damage to tissue, eye, and fibers in lung. Presence of VOC and NOx, which may mix with aerosol droplet of water, causes acid rain. It destructs the plant life and beauty. Mitigation: suffer compliance by the industries. Use of tech for mitigating pollution like electrostatic precipitators, scrubbers, reducing usage of VOC in daily product, uh, and look for alternative. The Gothenburg Protocol 1999 is for curbing smoke. It lays down the principle to curb pollution. It calls for reducing usage of ozone, carbon soot, and VOC compound. तो ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड थी कि आपने कोशिश करी, मतलब मैं बस ये बोलूंगी कि स्टार्टिंग में उसने बोला यू नीड टू एम्फसाइज ऑन इट्स फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन पे आपने थोड़ा लिखा, मतलब आपने बस मेंशन कर दिया कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो प्रॉपर एक होता है. अगर आप रिएक्शन लिख देते तो और थोड़ा इफेक्टिव हो जाता, और थोड़ा सा आप फॉर्मेशन पे लेके आ सकते थे. उसके अलावा आपने रिएक्शन क्लब किया, फॉर्मेशन और इफेक्ट्स आपने क्लब कर दिया और मिटिगेशन बाद में बात करी. तो मेरे हिसाब से फॉर्मेशन पहले आप एक्सप्लेन कर देते प्रॉपर्ली विद रिएक्शन. इफेक्ट्स एंड मिटिगेशन बात कर इफेक्ट्स एंड रहा मिटिगेशन होता तो हाँ थोड़ा मतलब लिंकेज बन जाता उसमें. और फिर आपने एक्सप्लेन कर दिया जो गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल के बारे में पूछा था. तो मैंने सर्च किया, गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल बेसिकली से बात करता है लेकिन लीगली बाइंडिंग है और इंडिया पार्ट नहीं है. हाँ हाँ, इंडिया एक्स्ट्रा है. इंडिया इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ. ठीक है. ये पता नहीं था कि कैसे इंडिया पार्ट है कि नहीं. हम्म. एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एंड अकरेंस ऑफ क्लाउड बर्स्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट. तो कंटेक्स्ट इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बताना है मैकेनिज्म एंड अकरेंस. पे वही डिस्कस टू रिसेंट एग्जांपल, वही बात है, सेम है. तो क्वेश्चन एक ही है इसमें. तो क्लाउड बर्स्ट is defined when the intense rainfall of around 100 millimeter in short time period in small region 20-30 किलोमीटर रेंज में होता है. Mechanism: when there is a strong current of air during the wet rainy season in India, aerosol traps water molecules and rises speedily. With weak current in the high altitude, especially in the hilly region, example Western Ghat, Himalaya, Northeast heat, the water vapor gets condensed and pours heavily. This causes flash flood. Example, दो example here. Kerala flood was caused by southwest trade wind carrying moisture with nearby Western Ghat. The horizontal current was weak, causing the cloudburst and flash flood in Kerala. 2021 में चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था cloudburst. It caused heavy damage to life and property. This was again due to the presence of weak wind and nearby Himalayas, disrupting the movement of moisture-laden winds. तो उसमें और कुछ नहीं लिखा होता, बताया था कि मैकेनिज्म और अकरेंस के बारे में बात कंटेक्स्ट करते हैं अकरेंस. हाँ, कॉन्टेक्स्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में. ठीक है, मतलब आप थोड़ा और जैसे आपने इंट्रोडक्शन में तो ये टेक्निकल थोड़ा लिख दिया, अगर याद रहता तो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसके अलावा आप थोड़ा ये लिख देते कि मतलब हिली स्टेट्स और प्लेन रीजन्स दोनों में आज के टाइम में इक्वल डेंजरस सिचुएशन में या इक्वल थ्रेट है ऑफ क्लाउड बर्स्ट. और मतलब थोड़ा और ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स और लेके आ सकते थे, मैं ये बोलूंगी. ये तो आपने ठीक है जो मैकेनिज्म और अकरेंस के बारे में लिखा वो ठीक है, करेक्ट है, उसमें कोई वो नहीं है. एग्जाम्पल में भी मतलब जो उत्तराखंड वाला एग्जाम्पल है सबको एक ये तो याद है ही है. तो सोचो कुछ ऐसा एग्जाम्पल जो इससे मतलब डिफरेंट हो. और आपने मतलब एक केरला का भी लिया तो मतलब नहीं, इसमें मेन बात है ना कि प्लेन्स के एग्जांपल लेना था मुझे. एक प्लेन्स का, एक और हिली हाँ एरियाज का. हिल का, हाँ मैंने भी इसी तो दो तरीके आता, तीन एग्जाम आता. एक चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड 21 साल का उत्तराखंड में जो हुआ, केरला का फ्लड हुआ और साथ ही असम का जो फ्लड हुआ, तो वहां पर भी. इस तो साल दोनों प्लेन्स है, लेकिन हिमाचल में बाकी अगर बिहार में भी हुआ है तो सब प्लेन्स. हिली वाला सिर्फ यही एक सर. हाँ हिली वाला तो अभी रिसेंटली जो हुआ है
हिमाचल प्रदेश वाला वो लिख देते। हिमाचल प्रदेश में। इसमें आपने ठीक है एक्सप्लेन किया एग्जाम्पल में कि कॉज बाय साउथ वेस्ट ट्रेड विंड, ये तो ऊपर आपने एक्सप्लेन कर ही दिया है, जो यहाँ पे भी आपने साउथ वेस्ट ट्रेड विंड के बारे में बात करी। आप हाँ यहाँ तो पे उसमें आते अकेरेंस कॉजेस सिर्फ बोला था ना, कॉजेस। नहीं, यहाँ पे डिस्कस टू रीसेंट एग्जाम्पल्स, तो उस रीसेंट एग्जाम्पल्स के कॉन्टेक्स्ट में आप ये लेके आ सकते थे कॉजेज क्या हैं बिहाइंड दिस, तो वो चीज थोड़ी डिफरेंट हो जाती फ्रॉम अकरेंस और जो ऊपर फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन बोल रहा है मैकेनिज्म और अकरेंस से, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं फिर यहाँ पे भी वही चीज लिखी है साउथ वेस्ट ट्रेड विंड वही सब कैरिंग मॉइस्चर, ये ऊपर भी आपने लिखा हुआ है। वेस्टर्न घाट्स के बारे में आपने बोला हॉरिजॉन्टल करंट, मतलब यहाँ पे भी आपने टेक्निकल एस्पेक्ट ही एक्सप्लेन किया। आप इस सिचुएशन को या जो इवेंट हुआ उसको डिस्कस करना था, तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा लिखते तो और मतलब डिफरेंट हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा रेपिटेशन हो गया उसकी वजह से। यहाँ पे भी आपने देखो सेम चीज रिपीट करी है सेकंड एग्जांपल में भी, दिस वाज अगेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक विंड एंड नियर बाय यहाँ पे हिमालय डिस्टरप्टिंग द मूवमेंट ऑफ मॉइस्चर लेडन विंड्स। तो यहाँ पे थोड़ा रीजंस लेके आते, डिजास्टर मैनेजमेंट या डिजास्टर प्लानिंग के बारे में थोड़ी बात करते। आपकी ऑडियो नहीं आ रही है औशिक, यूर ऑन म्यूट। हाँ वहाँ पूछा नहीं था डिजास्टर मैनेजमेंट का कि कैसे इसको करेंगे, कुछ अरे एक वर्ड में इतना नहीं लिखा हुआ डिटेल था। में नहीं और लिखना था ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ डिस्कस हाँ करना है। अब अगर यहाँ पे लिखा नहीं है डिजास्टर मैनेजमेंट, तो आप चीजें रिपीट भी तो नहीं कर सकते हो ना, तो थोड़ा डिफरेंट ही लिखने की कोशिश हाँ करोगे रेपिटेशन अवॉइड करने के लिए। तो सो फोटोकेमिकल स्मोक में मैंने लिखा है कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग लीडिंग टू पोर एयर क्वालिटी। सो फॉर्मेशन के बारे में पहले बात कर ली, NOx और VOC की वजह से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट एक्ट्स लाइक अ कैटलिस्ट। सो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स भी जनरेट होते हैं लाइक ओजोन, तो यहाँ पे मैंने रिएक्शंस भी लिख दिया। इफेक्ट्स और मिटिगेशन मैंने साथ में क्लब करके लिखा है, रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं एंड चिल्ड्रन ओल्ड एज पीपल दे आर एट हाई रिस्क। देन डिजीजेस के बारे में लिख दिया, लंग इन्फेक्शन, TB, अस्थमा। सो स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू एमिशन स्टैंडर्ड्स कर सकते हैं, BS6 नॉर्म्स जो हैं, अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, जो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में बात चल रही है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप, डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है। सो वी कैन वर्क अपॉन क्रिएटिंग मोर ग्रीन स्पेसेस एंड स्पेसिफिकली अर्बनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में हाई राइज बिल्डिंग्स में भी ऐसा कुछ डिफरेंट प्लान कर सकते हैं। एंड वी कैन फोकस ऑन कल्टिवेटिंग क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप्स लाइक मिलेट्स। देन मटेरियल डैमेज भी होता है टू कल्चरल हेरिटेज साइट्स, डेप्रिसिएशन ऑफ फिजिकल कैपिटल, तो कुछ लॉन्ग टर्म मेजर्स ले सकते हैं लाइक कार्बन ट्रेडिंग, स्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल रेगुलेशन। एंड देन एंड में मैंने प्रोटोकॉल के बारे में मेंशन कर दिया कि रिड्यूसेस एमिशंस, इसी चीज के बारे में बात करता है। सो इसकी वजह से कुछ हमें देखा है, मतलब देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ रिड्यूस्ड एमिशंस, बट अगेन जो अभी चल रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड इंटेंसिटी ऑफ जो क्लाइमेट चेंज है, तो जो बेनिफिट्स भी मिले, जो रिजल्ट्स भी मिले, वो कहीं ना कहीं ओवरशैडो हो गए बिकॉज ऑफ राइट नाउ जो क्लाइमेट चेंज इंक्रीज्ड इंटेंसिटी और उसके इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये हाँ आंसर। आपने बताया फॉर्मेशन, स्टार्टिंग में फॉर्मेशन, इफेक्ट्स एंड मिटिगेशन। हाँ ठीक है, फॉर्मेशन आपने बता दिया, POC, रिएक्शन, सनलाइट, ग्राउंड लेवल ओजोन। ग्राउंड लेवल ओजोन लिखते, ओजोन नहीं होता है, दो ओजोन है। ग्राउंड लेवल, हाँ ग्राउंड लेवल हाँ ओजोन। हाँ, तो वो वाला ओजोन अच्छा होता है जो आपने लिखा है। तो ठीक है, फिर नीचे करिए एक बार, इफेक्ट्स मिटिगेशन, TV, हाँ ठीक है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। हाँ, 3 एरियाज आपने लेके आया, आपने कल्चर, एनवायरमेंटल, हेल्थ, हेल्थ, उसका फिर मिटिगेशन नीचे, मिटिगेशन साथ में फ्यूल लिख। सेल, EV, मिलेट, फिर वो गटर में ब्यूटिफिकेशन कैसे रिड्यूस करते हैं, और फिर हम ठीक है, अच्छा है। और तो क्वेश्चन नंबर क्लियर 8। विजिबल है कितना डिफरेंस जो आपने डिफरेंशिएट किया। इसमें मैकेनिज्म और occurrence क्लाउड बर्स्ट का तो लिखा कि राइट नाउ वी सीइंग फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो गया ऑफ सच इंसिडेंसेस इन हिल्स एंड प्लेन्स, सो दैट इज अ साइन ऑफ अलार्म। सो यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट के बारे में लिख दिया कि क्या होता क्या है, सडन एंड इंटेंस वेदर इवेंट है कैरेक्टराइज्ड बाय हैवी डाउनपोर। occurrence is associated with convective clouds like cumulonimbus clouds and mass of moist and warm air that rises rapidly and then it condenses. So India में such incidences, these are witnessed during monsoon. So it brings warm and moist air from Western Indian Ocean coast from the Indian Ocean. Then along with this topography that also aids
उसमें एक्सप्लेन कर दिया। सो एग्जांपल्स मैंने लिखा है हिमाचल प्रदेश का जो कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है मंडी में 2023। सो हैवी रेन्स दे हैव रिजल्टेड इन फ्लैश फ्लड्स। सो डैमेज हुआ है ह्यूमन लाइव्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक। तो एंथ्रोपोनोजिक जो फैक्टर्स है उन्होंने इस चीज को फर्दर ड्रेडफुल बना दिया इवेंट को, लाइक अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, डिफॉरेस्टेशन, उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स भी बहुत ज्यादा हो रही है इस टाइम पीरियड पे, चेंजिंग नेचुरल कोर्स ऑफ वाटर फ्लो। फिर गुजरात क्लाउड बर्स्ट मैंने लिखा है 2019 वाला, तो मैंने भी मतलब एक हिल वाला एग्जांपल लिया, एक प्लेन वाला। अभी वाला भी ले सकते थे इसमें, गुजरात का 2023 वाला याद है, अभी भी हुआ था ना। हाँ अभी भी होता, बट मैंने थोड़ा हाँ, पहले कर लिया, वो तो दोनों ही सेम ईयर के हो जाते। सो सिचुएशन इक्वली डेंजरस है प्लेन रीजन्स के लिए भी। रिसेंट पूछा था, जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। डिस्पाइट नोइंग की ससेप्टेबिलिटी, प्रिपेयर्डनेस लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, विद बॉटम अप प्लानिंग एंड पीरियोडिक रिविजन भी होना चाहिए। सो ऐसे मैंने इसको एंड किया। तो कोशिश ये करी कि रिपीट ना करूं मैं एग्जांपल्स में चीजें जो ऊपर लिख दी हैं। हाँ, आपने इसको अलग टे समझाया कि डिस्कस टू, रिसेंट एग्जांपल में आपने डिस्कस टू दो टोटली डिफरेंट आपने अप्रोच किया। मैंने उसमें डिस्कस टू में मैंने उसको ऊपर के हिसाब से एक्सप्लेन किया लिख दिया हाँ। कि हाँ, कि वहां पर लिखा हुआ था ना कि इंडिया सम कॉन्टिनेंट। तो हाँ, अच्छा है, ऐसे ही करना था क्योंकि क्वेश्चन ही अलग था ये वाला, हाँ फुल स्टॉप के बाद तो हाँ सिर्फ मतलब डिस्कस वो टू एग्जांपल था। जो थीम है वो तो सेम है, बट अगेन वो ये आप ऊपर जो लिख दिया आप सेम उसी को नीचे नहीं लिख सकते ना एग्जाम्पल्स में, तो उसको डिस्कस करना है तो डिस्कस में तो यही आना चाहिए, क्या मतलब फैक्टर्स हैं आपने ह्यूमन लाइफ प्लानिंग के एंथ्रोपोजेनिक बारे में। फैक्टर्स गुजरात, मैं बताता हूँ इसमें और थोड़ा चेंज कर देता हूँ। अगर आप बता रहे हैं कि ये हो रहा है, अगर आप एक लाइन बता दिए हाँ डिफॉरेस्टेशन अर्बन, तो एक और अच्छा होता है अगर आप एक बता देते कैसे मिटिगेट करेंगे, उसे थोड़ा हाँ, पॉजिटिव टोन में मतलब खत्म एंड में होता है। मैंने बस क्योंकि प्लानिंग के बारे आपने में बात स्टार्टिंग में लिखा करी ना तो अनप्लान फिर अर्बनाइजेशन, कंस्ट्रक्शन, डिफॉरेस्टेशन, लैंडस्लाइड चेंजिंग, मतलब ज्यादा हो गया उसमें पॉइंट्स, कॉमा कॉमा करके। ठीक तो है। वहां अगर सिर्फ अनप्लान अर्बनाइजेशन लिखते हैं और फिर डिफॉरेस्टेशन लिखते हैं, फुल स्टॉप, हम्म however this can be mitigated by ऐसे करके आपको बताया। हाँ हाँ, मतलब मैंने यहाँ पे सिर्फ प्रिपेयर्डनेस लेवल्स के बारे में एंड में बात करी कि हमें पता है कि एरिया ससेप्टेबल है, तो उसके बाद प्रिपेयर्डनेस लेवल्स होने चाहिए। कि हम लोग टेक्नोलॉजिकल फ्रंट में पहले से वार्निंग का सिस्टम होना चाहिए, आई एम हाँ, विद या जो क्लाउड कंस्ट्रक्शन बस्टर। एक्टिविटीज है वो अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, वो अनप्लान तरीके से नहीं होनी चाहिए। जो इवन ड्रेनेज सिस्टम की भी बात कर सकते हैं कि वो भी टाइम टू टाइम वो भी देखना जाना या चाहिए। फिर लास्ट में बता देते कि छोटा चार्ट बना देते गोल टाइप से बट ये कि है ना, ये यहाँ पे ऐसे। 150 हाँ, वर्ड्स में लिखना तो यहाँ पे थोड़ा वो वर्ड्स का लिमिटेशन भी आ जाता है, क्या क्या लिखे इसमें, तो स्पेस भी हाँ, तो लिमिट। हटाना पड़ता है ऊपर में से हम्म 2 3 तक। ठीक है। ठीक है औशिक। आंचल कुछ बोलना है आपको? नहीं। ठीक है चलो औशिक, यू कैन क्लोज इट फॉर अस। So thank you everyone. We will take up next set of question 9 and 10 tomorrow due to Sarkari.